یہ کبھی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ انڈیا جو مرضی کر لے، پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی آرمی یہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گی، انڈیا جو مرضی کر لے۔ انڈیا جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ان کو دے رہی ہے، مطلب وہ ہم انہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلام ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھے جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں خوش ہیں۔ اگر ہم کو پوچھا جائے تو وہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ دیکھیں ہم جسے کہتے ہیں آزاد کشمیر اس کو آزادی چاہیے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر اس کو آزادی نہیں چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ انہیں وہ گورنمنٹ دے رہی ہے، ان کی فیسلٹیز جو ہے ان کو مہیا کر رہی ہے، ہمیں نہیں دے رہی نا پاکستان، ہم اس لیے کہہ رہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اگر وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور لوگ بھی ہیں، اور پھر وہاں پہ دیکھا جائے نا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے ماتحت ادارہ ہے، ان کے انٹرفیئرنس اس طرح سے نہیں ہے جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر ظلم بھی نہیں ہے جو یہاں پہ کیا جاتا ہے، اور استحصال بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو معاشی قتل ہے، ہر چیز۔ کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خود مختاری جان سے پیاری، تو انہیں رائٹس ملنے چاہیے، پاکستان کو چاہیے اگر وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے ان کو اپنے رائٹس دے، یہ نہ کرے کہ یہاں سے وہ بھیجے، آرمی بھیجے، فلاں بھیجے اور جا کے وہاں شیلنگ کرے، کیونکہ یہ پیچھے جو ہوا ہے تو ان سے 3-4 بندے جو ہے مظفر آباد کے تھے ان کی اموات ہو چکی ہیں۔ کشمیر کبھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے گا انڈیا کو چھوڑ کے؟ بالکل بھی نہیں بھائی، جو آلریڈی کشمیر ہے اس کی حالات دیکھ لیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، سارا کچھ کیا، تو وہ اسی کے خلاف کیا نا۔ اب ہمیں ایک نیریٹیو بنایا جاتا ہے اور میڈیا کے تھرو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کا جو کشمیر ہے وہ بہت خوشحال ہے، سارا کچھ ہے، اس کو آزادی مل گئی ہے۔ بھائی یہاں کے جو پاکستانی ہیں، جو پنجاب کے لوگ ہیں، ان کو تو آزادی آپ دے نہیں پا رہے، مطلب بولنے کی آزادی نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کی آزادی نہیں ہے، کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کیا آزادی دیں گے؟ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انڈیا نے پہلے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کیا اور اب انڈیا کشمیر کے اندر اسمبلی الیکشن کروانے جا رہا ہے۔ انڈیا نے جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے۔ اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسیب رضا کبھی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کام کرتا ہوں۔ اچھا زبردست۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا جموں کشمیر کے اندر الیکشن کروانے جا رہا ہے اور انڈیا نے اس کی ڈیٹ بھی ڈکلیئر کر دی ہے۔ کیا انڈیا کامیابی کے ساتھ جموں کشمیر میں الیکشن کروا پائے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ انڈیا جو مرضی کر لے، پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی آرمی یہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گی، انڈیا جو مرضی کر لے۔ بھائی انڈیا نے پہلے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کیا، ہم تب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ آپ کو لگتا ہے اب پاکستان الیکشن روک سکے گی؟ وقت کی بات ہے، تب نہیں کچھ کر سکے، اب تو کر سکتے ہیں، اب انشاءاللہ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے بھی ہماری فوج جو ہے وہ پورے ورلڈ کی سب سے بیسٹ فوج ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ جو بھی کریں گے، ایون مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو پولیسز ہیں ان کی، انہیں پتہ ہے، جو گورنمنٹ میں ہمارے جو بڑے افسران ہیں انہیں پتہ ہے، اور انشاءاللہ وہ جو بھی کرتے ہیں بیسٹ کریں گے۔ 77 سے 78 سال ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو لے کر۔ ان 77-78 سالوں میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کوئی 1-2 چیزیں گنوا دیں۔ وہ ادھر دیکھیں، ان کے لیے کچھ کر بھی لیں تو جتنے وہ ڈسٹرب ہیں مینٹلی، وہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پاکستان نے ہمارے لیے یہ کیا یا انڈیا نے وہ کیا، لیکن جو مرضی کر لیں انڈیا یا کشمیر والے، انشاءاللہ جیت تو مسلمانوں کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی۔ آپ کس کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ مینٹلی ڈسٹرب اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جموں کشمیر کے لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال ہیں، پھر بھی وہ لگتا ہے تو وہی ایریا نا، کشمیر ہی ہے سارا، تو وہ اگر وہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو اگر لے کے وہ ایزی ہیں تو دوسرے کو انہوں نے اپنی طرف ہی کرنے، اس لیے وہ پلان کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں پاکستان بیسٹ، پاکستان کچھ آلریڈی اپنی طرف کشمیر کو کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر یہ 15 اگست کو انڈیا کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے، کالجز کے اسٹوڈنٹ نے انڈیا کے ترنگے ہاتھوں میں پکڑ کے ریلیاں نکالی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ضرورت ہے انڈیا کو کوئی اسٹرگل کرنے کے لیے؟ وہ ساری زندگی بھی ابھی اور کوئی 75 سال لگے رہے نا، پھر بھی وہ کشمیر دوسرا جو حصہ ہے وہ نہیں لے سکتے، وہ ہمارا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان ہی لے گا۔ اور ہم نے جو جموں کشمیر کو پاکستان بنانا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے بڑے لیڈر بتائیں گے وہ کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے، ریکور کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں، کل ان کا ٹائم تھا، آج ہمارا ٹائم ہے، پاکستان کا ٹائم بھی آئے گا انشاءاللہ، اور وہ لے کر رہیں گے۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کرنے کے بعد اب انڈیا کی گورنمنٹ
जम्मू कश्मीर के अंदर जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है जिस तरह कामयाबी के साथ इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उस तरह इंडिया जो है असम्बली इलेक्शन करवा पाएगा कामयाबी के साथ? ये कश्मीरियों का हक है कि उन्हें आज़ादी दी जाए। ये इंडिया अपने तौर पे अगर ये मामला कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है और ये अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की सुनवाई होनी चाहिए कि ये बहुत गलत है कि अगर इंडिया अपने तौर पे वो कह रहा है कि भाई कश्मीर हमारा, तो ये बात नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का है, उनका हक है, वो जिसके साथ रहना चाहिए वो उसके साथ उनको रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना है ना हमने इंडिया के साथ रहना है, उनको एक अलग रियासत देनी चाहिए, ये उनका हक है। और ये अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उन्हें इंडिया के साथ कर लेना चाहिए। देखिए जिस अवाम जिस तरह खुश है ना उस तरह अवाम को रहना चाहिए। जिस तरह कहते हैं रियाया खुश है ना उस तरह हुक्मरान को करना है। रियाया जिस काम में खुश होती है ना उसी काम, वरना फिर वही बात होगी जैसे अभी आपने देखा है पीछे हमारे कश्मीर में कितनी तबाही हुई है, शेलिंग हुई है पुलिस की तरफ से और लोग भी मरे हैं। ये चीज़ फिर ना इंतशार पैदा होता है इन चीज़ों से ना। फिर अगर आप हुकूमत के अपोजिट चलते हैं फिर ज़ाहिर बात है अवाम जो चाहती है ना वो हुकूमत कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो फिर इंतशार और इस तरह के मामलात आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में चूंकि इंडिया अपनी कर रहा है, तरफ से कर रहा है, कभी वो मतलब कर्फ्यू लगा देता है वहाँ पे, कभी वो अपने कोई कर्फ्यू नहीं है, ये आपको किसने कहा है? जम्मू कश्मीर में कोई कर्फ्यू लगा हुआ है? बताएं। कर्फ्यू वगैरह तो नहीं है, देखें कि उनको राइट्स मिल रहे हैं तभी वो चाह रहे हैं कि हमें वहीं रहना है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ चले। ठीक हो गया। कोई आप कश्मीरी हैं? जी मैं तो कश्मीरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी। तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए अगर वो उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखता है उनको अपने राइट्स दे। ये ना करे कि यहाँ से वो भेजे, आर्मी भेजे, फलां भेजे और जाके वहाँ शेलिंग करे। क्योंकि ये पीछे जो हुआ है तो उससे 3-4 बंदे जो है मुजफ्फराबाद के थे उनकी अमवात हो चुकी हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ इख्तलाफात न रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनको उनके हकूक़ देने चाहिए। अब आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रही है। वहाँ पे आप देखें कि कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर से हैं, आप खुद देख लें कि आज़ाद कश्मीर को क्या दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आप खुद हिसाब लगा लें इस चीज़ का कि इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं हम खुश नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर उसको आज़ादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। 2019 में कर्फ्यू भी वहाँ पे लगा था, इंडिया ने ही लगाया था ना तब भी, कि इंडिया ने इतनी शेलिंग भी की थी और इतने लोग भी मरे थे वहाँ पे कि 8-9 महीने तक बंदा बाहर निकलता, अगर वो बंदा बाहर निकलता उसको मार देते। हाँ एंड वहाँ पे इंडिया देता है फैसिलिटीज उन्हें करता है, लेकिन ये भी है कि उन पर जुल्म भी तो होते हैं ना। कि अभी देखें ना वहाँ पे सिर्फ इंडिया, हालांकि वो मकबूजा कश्मीर या वो इंडिया का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिया वैसे कहता है कि हमारा पार्ट है लेकिन वो इंडिया का भी पार्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे करेंसी जो है वो इंडियन चलती है। यही बात तो मैं आपको कहने लगी हूँ कि बेशक वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे इंडिया वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, वहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, जिस तरह वहाँ से टूरिज़्म आ रहा है, जितना इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। तो फिर वो इल्हाक क्यों नहीं कर लेते? कश्मीर उनके साथ इल्हाक क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं उनके साथ प्रॉपर तरीके से मिल रहा? ये बात भी तो बताएं ना। ये मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है? हमारे साथ है ना? आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। फिर वो आज़ादी किससे मांगते हैं? देखिए आज़ाद कश्मीर की जहाँ तक बात है ना, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनके अपने कानून है, उसमें पाकिस्तान नहीं करता। इस पे हम पंजाबी क्यों बहस कर रहे हैं? कश्मीरी भाई हमारे साथ मौजूद है ना, यही बता दें। आप बताएं भाई क्या कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत हैं आप? ये कह रहे हैं कि उनके साथ इल्हाक कर लें, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ इल्हाक करें, हमारे उनके साथ अच्छे तल्लुकात हों, तो हमारे रिलेशन भी उनके साथ बने। क्योंकि इंडिया गैर मुस्लिम आ रहा है, उनके साथ फिर हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातें, इबादत गाहें, जो भी रस्म व रिवाज वो उनका अलग हो रहा है। हमारा रस्म व रिवाज भी अलग है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी वहाँ रस्म व रिवाज चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ इल्हाक करे या जिस तरह मर्जी करे, हमें हमारा कश्मीर अपना चाहिए।
अभी आपने इंडिपेंडेंस डे देखा, 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई एक नारा सुनने को मिला हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वहाँ पे जो नारे थे वो ये थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वही बात है ना, उन्हें हर चीज़ वहाँ पे मुयस्सर है, हमें नहीं मुयस्सर हो रही। मतलब हम अगर कश्मीर में कोई होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है, वो तो यही कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तनवीर, आपको पता है इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है, क्या इंडिया कामयाबी के साथ, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, उसी की तरह असम्बली इलेक्शन करवाने में इंडिया कामयाब हो पाएगा? हाँ डेफिनेटली, देखा जाए बाकी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं और फिर आप उस मकबूजा कश्मीर हम तो कहते हैं, हाँ जी। तो जो इंडियन ऑक्युपाइड है, अगर वहाँ की देखी जाए, डेवलपमेंट देखी जाए और जिस तरह के लोग हैं और खुशहाल हैं वो देखे जाएँ, तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन किया जाए एक पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका और एक वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, बिल्कुल। तो उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों ना कि वो लोग उसके साथ ही रहेंगे और एक डेवलपमेंट हो रही है और वैसे रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, तो क्यों ना कि वो वहाँ पे ही सरवाइव करेंगे और अपने उस इंडिया के लिए या उसके लिए अपने लिए, लाजमी बात है हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है, ऐसा ही है। और अगर वो स्टेट जो है उनको डिलीवर कुछ ना कुछ कर रही है तो डेफिनेटली वो उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट की है और उससे कश्मीर भी बड़े खुश और सेटिस्फाइड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया ने अब बात की है कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे थे और इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा था। हाँ अब देखें वहाँ पे भी किरदार होते हैं ना कुछ तो किरदार होते हैं जो ऐसी साजिश कर रहे होते हैं या फसाद फैला रहे होते हैं या अपना जो अमन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उन्हें क्रैक डाउन तो करना ही था एक अमन के लिए या एक खुशहाली के लिए या बेहतर उसके लिए एक सोसाइटी के लिए, तो उन्होंने वो किया, क्रैक डाउन किया, सब चीज़ें की हैं, तो मेरे ख्याल में तो अच्छा ही है। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं वहाँ पे अमन है, कोई इस तरह के माहौल नहीं है जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनके पास एक ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं और उनको बाकी डेवलपमेंट, बाकी मैं जो कह रहा था खुशहाली है, सारा कुछ है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पुरअमन तरीके से जो है असम्बली इलेक्शन कंडक्ट करवा सके वहाँ पे। नहीं मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं, और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है और इस्तेसाल भी नहीं है। यहाँ पे तो माशी कत्ल है, हर चीज़ का जो भी देखा जाए, जो कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, चाहे हक पे भी हो और सही बात भी कर रहा हो, सच भी कर रहा हो, तो उसको उठा लिया जाता है, पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है। अब हमारे यहाँ पे देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके लिए भी रिस्क होता है कि आप भी ना उठाई जाएँ, तो इसलिए सब चीज़ें हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं भाई, जो ऑलरेडी कश्मीर है उसकी हालात देख लें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो इसी के ख़िलाफ़ किया ना। अब हमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई यहाँ का जो कश्मीर है वो बहुत खुशहाल है, सारा कुछ है, उसको आज़ादी मिल गई है। भाई यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको तो आज़ादी आप दे नहीं पा रहे, मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। तो आप उनको क्या आज़ादी देंगे? हमें बिल्कुल उल्ट दिखाया जाता है, उल्ट बताया जाता है, हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हकीकत उठा के देखें, आप उन लोगों से बात करके देखेंगे जब रियल टाइम या उनकी लाइव देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। आप डेवलपमेंट उठा के देख लें, आप इंडिया का जो ओवरऑल प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको उठा के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मीडिया है, मीडिया के थ्रू तो एक चीज़ है, उसको बार बार दिखाएंगे, ज़्यादा उछालने की कोशिश करेंगे, वो आपको लगेगा आपके माइंड सेट, क्योंकि आप रियल टाइम तो कुछ नहीं देख रहे, आप तो मीडिया के थ्रू आपके पास चीज़ें पहुँच रही हैं, तो आप उस बेस पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आज सिर्फ वो एक वो नैरेटिव बनाया जाता है, ये एक चीज़ बेची जाती है कि भाई
वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है और जो हिंदू हैं वो जुल्म करते हैं और ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो एक, मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो मुसलमान हैं यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो हम बराए नाम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हमसे कहीं बेहतर हैं। और यहाँ पे क्या इस्लाम का नाम जो लगा के यहाँ पे पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं आप देखें, क्या इस्लाम का नाम यहाँ पे जो लेते हैं या मजहबी फ़िरका वारियत है, ये सारा कुछ है। आप सूद तो उठा के देखें, सूद के ऊपर कोई बात करता है या कुछ करता है? अब माशी कत्ल हो रहा है लोगों का, लोग गुर्बत से जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, क्या 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 कुछ हो रहा है। मतलब अब आपको एजुकेशन नहीं है, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए इवन आपके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं। यानी कि पंजाब से ज़्यादा, लाहौर से ज़्यादा अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोग गुजार रहे हैं फिर। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही। हमारी तो सिर्फ एलीट क्लास है जिनकी ज़िंदगी बेहतर है, मतलब जिनके लिए ये जन्नत है। अदरवाइज़ जो मिडिल क्लास है, बल्कि मिडिल क्लास आप उठा के देख लें, स्टैट्स देख लें कि 95% होंगे जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, और उनको भी बेसिक नीड्स उनको वो नहीं मिल रही। अब जो मिडिल क्लास थी अब वो भी लोअर मिडिल क्लास में वो सही है। जा रही है। मतलब अब मिडिल क्लास भी गुर्बत से निचली लकीर का तबका बन गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनकी तो वो बिजली के बिल ही नहीं पे कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बाद की बातें हैं ना। अब देखने की ज़रूरत तो ये है ना कि हम अपने आप का थोड़ा सा एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं और हम उसकी बात करें, ठीक है। और एक वो कश्मीर जो खुशहाल है, बेहतर है, बहुत गुना बेहतर है, ठीक है। और वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनेगा भाई, उसको क्या पड़ी है, पाकिस्तान का क्यों हिस्सा बने।